This is a Polalam beach. Hi guys, so we have reached Madgaon now, and we are going to take our rented bikes. We had booked it earlier from Bangalore itself, so we had booked it for 2 days. It's around 1 kilometer from railway station, so we are going there to take our bikes, and from there we are moving to Polalam beach. We have booked a dormitory there. It's called Zostel. From here we'll take our bikes and we are moving to Polalam beach, which is around 40 kilometers from here. So we are going there and we are staying for this night. This is a Polalam beach. बोट में जाएंगे नहीं, बैक वाटर रिवर में ईगल फीडिंग करते हैं, बैलेंसिंग रॉक ऑलरेडी Hey guys, welcome back to our channel. You're watching V4Vloggers, and this is day 2 of our trip. So from Dudhsagar we reached Madgaon in train, and from there we took bikes to reach this place. This is Polalam beach. We came here for kayaking. We had already booked kayaking with a person called Dev, so we are going to his place now. He's going to take us through waters now. We are searching for his place. So it's this is the beach. This is the Polalam beach which I was talking about. And I see it's crowded, and the crowd is going to increase gradually from October. That is what they said. So this is the Dev's kayak which we booked. Maybe we should call him. Hello guys, he is Dev, so he is going to take us for kayak. Hi bhai. So Yes. क्या प्लान है अब? अभी हमारा प्लान है कि यहाँ से हम लोग जाएंगे बैक वाटर के लिए। वहाँ पे मस्त है, मतलब वो एरिया घूमने के लिए सब अंदर अंदर से गली गली जाएंगे। वहाँ पे हम लोग देखेंगे ईगल फीडिंग जो चल रही है बोटिंग से, वो देखेंगे। वहाँ पे मैजिक स्टोन करके है, वो भी देखेंगे। थोड़ा बर्ड्स वो एरिया वो अच्छे से घूम के वापस आ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक तो है। अभी फ़िलहाल तो यही समथिंग है, तो यही एक साइड में ये भी बेस्ट है, मतलब जंगल साइड में। जब आप लोग सी में करते हो तो सी साइड में एक अलग ही होता है, दोनों डिफरेंट, दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। वैसे सी में जाती है तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है ज़्यादा, इसमें हमारा उतना हार्ड वर्क भी नहीं जाता है। तो हम लोग आराम से पेडलिंग कर सकते हैं, आराम से वो एरिया कवर कर सकते हैं, पूरा व्यू अंदर से देख सकते हैं। So the thing is, you have two types of kayak. One is you go into the sea, and the other thing is what he said, towards the backwater. So he is taking us around 2 to 3 places over there, and we are going there now. We are not going into the sea now. So you have two options, and one more option, like he takes to kayak in early morning, so to see sunrise or even during the sunset. So you can, when you call him, you can ask for that also. So that has different package. So we came for that, but we couldn't make the time, so we are coming now. Okay bhai, start करेंगे. यस, अभी स्टार्ट करेंगे। Going with him now.
So I didn't get time to introduce my friends. So I'll just say their names. Hi Farhan, Raj Kishore, Praveen, Yellappa, Asif and Niranjan. भाई इधर से कितना दूर है? यहाँ से हमको एक 2-3 मिनट का वॉकिंग है। ठीक है। उधर से? यहाँ से ये जो झाड़ दिख रहा है ना, हाँ। झाड़ के वहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। ठीक है। पूरा गली में से सीधा जहाँ पे कहेंगे हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। वहाँ पे भी अंदर भी बहुत गेस्ट हाउसेस ये सब कुछ है। तो अभी ओपन हो रहा है ना, इसलिए पूरा माहौल ऐसा दिख रहा है। इधर बीच स्टे चाहिए तो कितना लेंगे वो? बीच स्टे बोला तो अभी तो उनका स्टार्टिंग प्राइस चल रहा है। हाँ। जो आपका सी फेसिंग रहेगा, हाँ। वो स्टार्टिंग रहेगा अराउंड 3000 4000 ऐसा रहेगा। ठीक है। और मेन टाइम में मतलब न्यू ईयर के टाइम उस टाइम अगर आए तो अराउंड 5000 6000 बढ़ेगा। ठीक है। तो ये कैसा है facing। कि या बीच फेसिंग ये कैसा है कि स्टार्टिंग में डाउन प्राइस होता है, स्लो बढ़ जाता है। हाँ। वापस डाउन जाता है। ठीक तो है। एंडिंग तक। ठीक है। तो डिपेंड आप लोग को जैसा रूम चाहिए वैसा मिल सकते हैं। मतलब थोड़ा अंदर साइड में बैठ गए तो आपको चीपेस्ट में मिलेगा 1000 में, 1500 में। वैसे एसी नॉन एसी रूम ठीक है। ऐसा। और कायाक आप ट्रेनिंग लेते हैं ना आप? यस, उनको पूरा सिखाता हूँ कायाकिंग का। ठीक है। कैसा डायरेक्शन किधर से किया, किधर से जाएगा, ये सब कुछ। यहाँ से जाएंगे हम अंदर। हाँ ठीक है। So he's going to give us brief training how to do kayak and how to handle different situations. So we'll just see that now. भाई आप कितने साल से कर रहे हो ये? इज अराउंड 15-16 ईयर्स हो गया। मेरा पूरा बचपन ही इधर ही है पालोले में। ओह तो अभी पूरा फैमिली के साथ इधर ही हूँ। तो काम है। मेरा अभी ये बन गया। मतलब अच्छा इससे है, अच्छा। पहले बार में भी काम किया, हाँ बोट पे काम किया, ये बहुत तरह का अलग अलग काम किया। ठीक है। तो फाइनली मैं इसमें अटक गया। तो इसमें मज़ा भी आ रहा है क्योंकि इसमें अलग बहुत ये है। मतलब पूरा आपको कैसे घूमने का, ट्रैवल के लिए किससे बात करेगा, क्या क्या सब कुछ समझ में इधर से आता है। करेक्ट। जितना हमारा स्कूल से उतना स्टडी नहीं होता है ना कि आपको कैसे लाइफ में कैसे जाने का है, Correct. वो पूरा पार्ट इधर सामने होता है। तो कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या थिंग्स होता है। तो अभी ये तो 15-16 साल बोला तो ये पूरा देख लिया। तो अभी सिर्फ काम मेरा ऐसे छोड़ दिया है कि पूरा जो लोग आएंगे उनका पूरा सेवा में ऐसे ही काम करेगा। ठीक है। तो इसमें अपना भी मन लगता है और दूसरों का भी, मतलब उनको पूरा ट्रेनिंग मिलता है। हाँ वो भी आ रहा है वो लोग। वेट करेंगे थोड़ा। क्या ना कल हम दूध सागर ट्रैक किए, क्या इसलिए सब थक गए। ओके। 24-25 किलोमीटर ट्रैक है वो, इसलिए थक गए सब। पर वहाँ पे कोई गाइड आया था आप लोग का? हाँ हाँ गाइड लिया था। गाइड लेके आया था। वो कितना, मतलब कोई बोल रहा था मुझे कितना 800 ऐसा कुछ चार्जेस लेते हैं वो? नहीं हम guiding तो का? 400 में गए थे पर अच्छा है वो 200 पर ऐसा? पर्सन 400। ओके, कोई बोल रहा था मुझे नहीं थोड़ा नहीं दिन वो भी पहले। है 800-900 है, लेकिन हम जो गया ना वो हाँ। 400 लिया और अच्छा और अच्छा रहा। अच्छा। अच्छा। हाय गाइस, हाय। सो वी आर इन ड्रीम कैचर। इसका नाम ही ड्रीम कैचर है। क्यों बोलते हैं? ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स आता है यहाँ पे, सोया तो ज्यादा ड्रीम्स आते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है। तो इसलिए नाम रखा ड्रीम कैचर। लगी तो So guys, this is our starting spot. So we are going in backwaters. You would have seen in videos. चलाने का, घुमाने का है तो मेन इधर उधर से घुमाने का। और दोनों साथ में चलाएंगे। आगे से सेफ्टी के लिए ड्राइवर, मतलब सपोर्ट के लिए। पीछे से मेन चलेगा और इसमें हमको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। आराम से किया तो आराम से जाएगा, स्लो ऐसे। तो वैसे इसमें ज़्यादा ताकत नहीं चलेगा, थोड़ा स्लोली चलेगा पूरा। अगर सी में होता ना तो आपको कैसा ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। इसमें वो नहीं, इधर बैठने का पैर आगे लंबा वैसे।
जाएंगे तो ये सीधा जाएगा। अगर आपको राइट लेफ्ट चलाने का है, ऑपोजिट घुमाने का है, तो अगर राइट घुमाने का है तो लेफ्ट में चलाने का दोनों। लेफ्ट में चलाएंगे तो राइट घूमेगा, राइट चलाएंगे तो लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसका वैसे। और अगर आप लोग सीधा जा रहे हो और आपको स्टॉप करने का है सडनली स्पीड में ज़्यादा टाइम, तो ये क्या करो, ये ऐसे पकड़ा है ना आप लोग आगे जाने के लिए, ये उल्टा करो और पीछे से डालो और आगे पुश करो थोड़ा सा दोनों साइड में ऐसे थोड़ा, तो ये स्टॉप हो जाएगा। अगर वैसे ही रिवर्स लेने का है तो वैसे ही चलाओ, ये ऐसे ही जाएगा तो ये रिवर्स नहीं जाएगा। आगे बढ़ने का है तो ये उल्टा करो, आगे से पीछे खींचो, तो ये आगे पूरा पहुंच जाएगा। निरंजन इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। चलो अभी हम लोग चालू करते हैं। हाँ ठीक है। Look at them where they are going. इधर से चलते हैं, ये जो बोट जा रहा है। Just look at the view, guys. I would suggest you guys to come in early morning so that you will have a great view here. And main thing is you don't feel like you're in Goa this time. We are at eagle feeding place, so they just put food for eagles here, and you can see. So guys, just now we finished the kayak. It was really awesome. The thing is they are not leaving in, towards that sea, so we just took the backwaters route. It was really nice, and this was first time for me, so I felt it really good. And you can definitely come here. He's really cool, and the rates depends on the season. So for us now he took 200, but he usually charges 250, 300 like that. So you can call him, you can talk to him and fix one price and come.
but experience wise it was really good. For 800 meters. In 200 meters, turn right onto Aganda Beach Road. Just look at this. From Kollalam beach we reached Agoda. It's around 25 minutes journey from there. Here we'll spend around half an hour and then we are going back to Madgaon. So that ends our trip. And the beach is really awesome, and even in Kollalam beach we spent around 3 to 4 hours there after kayaking. It was really good. It was really nice experience there as well. And we have come here to see the sunset. I don't know if I can show this here. Yeah. So we have come for the sunset. So we'll just spend half an hour here and we are going back to Madgaon. So that's it for today, guys. So we gave our bikes there and trip officially ends here. We left the Agonda beach around 6:30 and it started raining, so we took more than an hour to reach here. And our train is at 11 o'clock. We are planning to have dinner here and we are going back to Bangalore. Our train is at 11 o'clock. So we are searching for a nice hotel and we'll have our dinner, and that ends our trip. It was really nice trip for us. Let's meet in the next vlog, guys. Bye.